हेलो, क्लास आवाज आ रही है? हेलो, सर most of the time you all are not joined by yourself on the given time allotted to you on the timetable. So I just remind you every time. So sir, we were giving yeah, sir, today is the placement activity exam. okay, but notice not joined by yourself with the discussion. Okay, so tutorial 5 is now going on basically. So we have discussed the topics you can see on the base application layers related to application layer basically. So some subjective questions are there, and if you see the first question is what do you understand by the application layer? If you see, then what do you understand by DNS? Mention its component. Clear? तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन लेयर आपका आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एप्लीकेशन लेयर? कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? So as I have discussed in the classroom also. Hello. What is the role of application layer on OSI model? Anyone of you explain this? Okay. So we talk about the starting questions. So I think we have discussed in the last tutorial class. Clear? So if any doubt in that questions you may ask. Otherwise, I may continue further. Okay. So application layer पहला question जो आपका है, what do you understand by the application layer? So this is the topmost layer of the OSI model basically. Clear? And it is an layer that is specified that shared communication protocol interface method used by the host in a communication network. Clear? So it basically used in both of the standard model of computer networking, that is the internet protocol. So just you need to understand by the DNS basically, mention its component. So DNS की अगर हम बात करें, DNS is a domain name server basically, or domain name system. You all know about the DNS. Clear? Can anyone explain what is DNS? Hello? Yeah, someone is asking anything or Hello. Hello. okay. So tell you, I think. So domain name system was invented for this purpose. Basically, DNS is a naming scheme that is on a distributed database system. Clear? So each domain is divided into subdomains, and these are further
partitioned into many other forms, so and so on. Clear? So all these domains can be formed a tree. Exactly, tree basic structure is there. So domain names are basically case insensitive होते हैं ये. जैसे अगर आप स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो it will have the same meaning. There is no such matter of case sensitive. Clear? Now every node has a label which is 63 characters long, and the root of the tree is a special node with a full label. So all of you are requested kindly mute yourself. Ankur Singh, kindly mute yourself. Yes, Ankur Singh, are you listening to me? Okay. Now I just want to tell you that a domain name system basically a type of system that is used in the organizations basically or the countries. Clear? So it has a root basically that is divided into subcategories like com, edu or rg. I'm just sharing you the file so you can see what is exactly means. So I'm just sharing, just wait. So okay. So if you see, we have a domain name structure like this. So you can see this is the DNS system. So the root is having no label assigned, and then it is divided into further category like com, edu, org, gov, net, au, not in. Clear? So these are the subcategories of this. Clear? So Ankur Singh. Okay. Now I think hello, all of you are getting. Yes, sir. We have the structure like this for the DNS system. So it is just having a root level. Root उसके बाद उसको further करते हैं. You can see like com, Yes, sir. यूजर नेम इन द इनिशियल पार्ट एंड देन एट द रेट के बाद एक हमारे पास पार्ट होता है
क्लियर। तो इसको ही हम लोग डोमेन नेम कहते हैं, जो भी com@gmail.com और yahoo.com और org, क्लियर, जो भी कुछ है तो वो हमारा डोमेन नेम कहलाता है। दैट इज व्हाट आफ्टर द @सेक्शन, क्लियर। सो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे DNS components हैं। These are some DNS component that include domain, domain name, name server, name resolver, name cache, zone. So each all have their different meanings exactly, clear। जैसे डोमेन नेम आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, सीक्वेंस ऑफ नेम एंड डोमेन, ठीक है। इसके बाद आता है नेम सर्वर। नेम सर्वर एग्जैक्टली इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैप्स नेम इनटू द एड्रेस। देन वी हैव नेम रिजॉल्वर। Name resolver exactly is a client interacting with name server, so it is a called name resolver. The name cache, that is storage used by the name resolver. Cache का मतलब हो गया कि storage place है। Zone is the contiguous part of the domain, clear? So these are the DNS component. Then we have a name address resolution. So this name is used by the DNS, that is very convenient to humans, cannot be used for communication through the internet. This requires mapping a name to an address known as name address resolution. Clear? So it has have name servers, zone, you can see, clear? तो जो DNS सर्वर होता है कुछ इस तरीके से हमारा स्टार्ट होता है। दिस इज द रूट सर्वर। रूट सर्वर में जैसे .in हम लोग यूज करते हैं, फिर अगर उस रूट सर्वर के हमारे फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो ERNet, दैट इज अर्नेट, दैट इज द सर्वर फॉर अर्नेट.in, उसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका SMBEC, तो दिस इज सर्वर फॉर SMBEC.arnet.in, देन सर्वर फॉर CSE.SMBEC.arnet.in। तो इस तरीके से डिवीजन होता जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट DNS सिस्टम बेसिकली, क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यही पूछा गया एड्रेसिंग स्कीम, और सेकंड में What do you understand by DNS and mention its component? तो component हमने भी आपको बता दिया था, नेम, डोमेन नेम, क्लियर, रिजॉल्वर। सो ये सब आपका क्या है, कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक है। Now we have the second part, that is different file transfer approach, in which the question number 4, if you can see, what do you mean by FTP? Clear? What do you mean by FTP? So can anyone explain what is the role of FTP? कोई बताएगा FTP क्या होता है? Class, can anyone explain? File Yes, what is FTP? transfer protocol. Okay, okay. File transfer protocol. Okay, how it works? How exactly it works? Can you please give some detailed information? Okay, who is talking to me right now? Transfer of file between client and server. Okay, okay. Okay, who is responding to me right now? Okay, I think. Okay, so FTP is basically a file transfer scheme through which you can access message, text message, clear, or data, that is a media file, may contains image or video, clear. So through this FTP scheme, exactly the files can get communicated from one end to another end, clear. So इसमें आपका क्या होता है कि जैसे कोई भी फाइल एक्सेस होने से पहले, सपोज क्लाइंट सर, एक क्लाइंट है एक सर्वर है, क्लियर, क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइल एक्सेस हो रही है, क्लियर।
सो क्लाइंट सर्वर का जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से है कि उसको पहले हमें एक पर्टिकुलर कनेक्शन को स्टैब्लिश करना होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में. Until unless you will not stabilize a connection between client and server, they can't communicate their data or message. Clear? So सबसे पहले तो हमें एक कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं. तो कनेक्शन किसके थ्रू होता है? टीसीपी के थ्रू. TCP is a reliable protocol basically, which is used for the establishment of the connection between the sender and the receiver or client and server. Clear? So TCP use होता है FTP के अंदर. Clear? Which is a type of reliable type protocol that makes the system connection oriented. Clear? उसके बाद जो है जब ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है उसके बाद डेटा कम्युनिकेट करता है. ठीक है, तो एग्जैक्टली वी हैव. अब इसके बाद क्या है, हमारे पास दो कनेक्शंस होते हैं एफटीपी में. एक कंट्रोल कनेक्शन होता है और एक डेटा कनेक्शन होता है. ठीक है, दो वायर्स होते हैं. एक कंट्रोल कनेक्शन के लिए वायर होता है, डेटा कनेक्शन के लिए वायर होता है. कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन दो लाइंस पे हमारे एग्जिस्ट करते हैं. किसके बीच में? सर्वर और क्लाइंट के बीच में. ठीक है, जो हमारा कंट्रोल कनेक्शन होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो हमारा जितनी भी कंट्रोल रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं रिलेटेड टू योर सपोज सेशन एस्टेब्लिशमेंट. क्लियर? और वी कैन से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, सेशन से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड जो भी कुछ है, या रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज जो सेंड और रिसीव हो रही हैं, वो सब आपका कंट्रोल कनेक्शन के थ्रू एस्टेब्लिश होता है. एंड व्हाट अबाउट द डेटा कनेक्शन? डेटा कनेक्शन के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, तो कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन तो हमारे कनेक्शंस होते हैं एफटीपी में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे होते हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. ओके, सो उसके बाद जो है मैंने बताया आपको, एक तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए. फिर इसमें कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शंस यूज होते हैं. दो अलग अलग वायर्स होते हैं. कंट्रोल कनेक्शन ट्राई टू मैनेज एंड एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन server and client, and it monitors the communication. Clear? While the data connection is just used for the communication of data or transfer of data from client to server or server to client. Now इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें कि पोर्ट नंबर होते हैं. पोर्ट जैसे जो डेटा कनेक्शन है वो पोर्ट 20 यूज करता है. ये फिक्स पोर्ट है एफटीपी प्रोटोकॉल के अंदर. ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपर में पूछे भी जाते हैं. What ports they use for the communication for data and what port they use for the FTP use for control connection. तो पहली बात तो डेटा कनेक्शन के लिए पोर्ट 20 यूज करता है और कंट्रोल कनेक्शन के लिए पोर्ट 21 यूज करता है. ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है. डेटा कनेक्शन के लिए पोर्ट 20 यूज करता है FTP और कंट्रोल कनेक्शन के लिए पोर्ट 21 यूज करता है. एम आई क्लियर? तो मैं सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई एम जस्ट शेयरिंग यू द फाइल आल्सो. आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लगेगा. जो बच्चे दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द क्लासरूम एग्जैक्टली क्लास लेक्चर, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन. क्लियर? सो जस्ट वेट, आई एम शोइंग यू हाउ द एफटीपी प्रोसेस इज डन. क्लियर? ओके, सो दिस इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बेसिकली ये देख सकते हैं आप. It uses the services of TCP. It needs two TCP connections. पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल कनेक्शन, दूसरा होता है डेटा कनेक्शन. कंट्रोल कनेक्शन के लिए पोर्ट 21 यूज करते हैं. दिस इज अ वेल नोन पोर्ट. और डेटा कनेक्शन के लिए पोर्ट 20 यूज करते हैं. क्लियर? शायद ये आप अभी जो मैंने शेयर किया दिख रहा है आप लोग को? Yes, इज इट sir. विजिबल? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके. और ये आप देख सकते हैं हाउ द कम्युनिकेशन इज डन. क्लियर? सो एफटीपी जो है इस तरीके से कम्युनिकेशन करता है. We have a client and we have a server.
सो क्लाइंट एंड पे आप देख सकते हैं वी हैव यूजर इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस, डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, एंड सर्वर एंड पे कंट्रोल प्रोसेस है, डेटा ट्रांसफर प्रोसेस है. ऑल्सो वी हैव ए memory disk. You can say this is the disk where the data is stored. At server and at client end दोनों साइड पे डेटा हम यहाँ पे स्टोर करते हैं. ठीक है, जो भी एक्सेस होता है डेटा. और जो भी यूजर है वो सपोज पहले क्या करेगा, यूजर इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करेगा एंड इट जस्ट एक्सेस द डेटा. मतलब पहले तो ये कनेक्शन को स्टेब्लिश करेगा. तो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए it will try to access with the control process, and the control connection will be established between to both control process at client end and server end. This TCP connection end clear. उसके बाद जब connection will be established, then the data will be processed from the data transfer process from client end to the server end or server end to the client end through TCP IP connection. Clear. And the data get stored also at these storage disk you can see on the sender and receiver end. So this is all about FTP basically. कंट्रोल कनेक्शन की बात करें तो इस तरह से कंट्रोल कनेक्शन होता है दैट में क्लाइंट और सर्वर इन्वॉल्व होते हैं और कंट्रोल सिग्नल बेसिकली सेंड होता है इन दोनों के बीच में. क्लियर. सो जो भी लोकल कोड्स आते हैं उसको आस्काई सिग्नल में कंट्रोल मतलब आप कन्वर्ट करके उसको ट्रांसफर करा सकते हैं. ठीक है. So this is all about the data connection. You can see where the data is getting processed through client and server. Clear. अब इसमें एक चीज और है, कुछ जैसे डिफरेंट डिफरेंट फाइल टाइप्स भी होते हैं, डेटा टाइप्स, फाइल टाइप्स और डेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है. ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मोड भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद जैसे आपका बिट स्ट्रीम में भी डेटा ट्रांसमिट होता है, ब्लॉक्स में भी होता है. क्लियर. या हमारा स्मॉल स्मॉल टर्म मतलब कह सकते हैं उसको रिड्यूस फॉर्म में भी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं. क्लियर. और अगर हम फाइल टाइप की बात करें तो फाइल टाइप्स भी इसमें कई तरह मतलब कई तरह की हो सकती हैं. ठीक है. ये सब हमने बताया था. तो अगर आप लोगों ने क्लास में ध्यान दिया होगा तो इट हैज बीन डिस्कस्ड इन द लेक्चर. क्लियर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ट्यूटोरियल शीट. Okay, so the next question is explain HTTP to access data on www. Can anyone explain what is HTTP protocol basically? HTTP कोई बताएगा क्या होता है? What is HTTP? Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. Eh, What is its role? क्या काम करता है ये? कैसे वर्क करता है ये? Okay, www क्या है? What is www? World Wide Web. World Wide Web. Okay. So I think Akshita is talking with me, na? Akshita, you are responding. I think. Okay, World Wide Web. Okay, so how HTTP evolved with the www? Can you have any idea about this? I have discussed in the lecture this topic. I have discussed about HTTP protocol, but my question is this: how HTTP evolved with the www, means World Wide Web? HTTP is also a secure type communication. Basically, it deals with the TCP protocol. HTTP also deals with the TCP connection oriented protocol basically. That is the transport layer protocol.
but how it deal with, clear? कोई बताएगा मतलब कैसे हम जैसे कोई भी हम वेब पेज पे से एक्सेस करते हैं, कोई डेटा एक्सेस करते हैं, then we just type the URL, clear? And in that URL portion, if you see, uh, we have starting में ही सबसे पहले एक टर्म आती है HTTP, clear? So एक टर्म होता है HTTPS, दोनों में क्या डिफरेंस है? HTTP एंड HTTPS दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब सिक्योर होता है। ओके गुड। सो एस मतलब हो गया कि दैट फाइल इज सिक्योर्ड, ठीक है? द पेज यू आर एक्सेसिंग दैट इज सिक्योर्ड बेसिकली, and those that's why the S will be also added with the HTTP. Yeah. So what is HTTP? HTTP है क्या? How you can access the file through HTTP? Is it a transfer mode? एक तरह से क्या ये कोई ट्रांसफर करता है फाइल को या कुछ ऐसा, मतलब आपने पढ़ा है? Nobody knows. Text transfer Application protocol. layer protocol. यस कुछ बता रहे हैं आप, बताइए। ओके SMTP और HTTP में क्या डिफरेंस बता सकते हैं? SMTP और HTTP में डिफरेंस क्या है? SMTP is what? SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके Simple mail transfer protocol. ओके तो अभी आप देखिए फाइल हमने शेयर किया है। So HTTP exactly is used to access data on the www. This protocol basically transfer data in the form of plain text, hypertext, audio, video, etc. So the data transfer in HTTP is similar to SMTP. The format of the message is unrolled by MIME like headers. Clear? So if you see how it operates, so principle of HTTP is what? We have a client server relation. The client requests for a message to the server and the server responds to the client. Clear? So the response message will be sent by the server to the client. Clear? Now it exactly uses the MIME format. MIME क्या होता है? Multi-purpose Internet Mail Extension. अभी मैं बताऊंगा MIME format क्या होता है. Clear? So the request and response carry data in the form of a letter with a MIME format. ठीक है? जो भी responses या requests सेंड होते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो एक लेटर फॉर्म में होते हैं। लेटर किसको फॉलो करता है? वो लेटर किस तरीके के फॉर्मेट को फॉलो करता है? माइम फॉर्मेट को। माइम इज आल्सो ए फॉर्मेट दैट इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्लियर? सो इस फॉर्मेट में हमारा जो है जो भी डेटा है एग्जैक्टली वो उस लेटर के फॉर्म में माइम फॉर्मेट में हमारा ट्रांसमिशन होता है। क्लियर? दो तरह के मैसेजेस होते हैं, रिक्वेस्ट मैसेज और रिस्पांस मैसेज एचटीटीपी के अंदर। ठीक है? रिक्वेस्ट मैसेज क्या है? यू सी द रिक्वेस्ट मैसेज पेपर में पूछा भी जाता है, and format of the request message is also asked several time into the examination. So request message is a type of message which is exactly sent by the client to the server for the requesting of data or connection. So it consists of a request line, header and body text. So request line, header and body text is the part of the request message. Clear? It is further divided into रिक्वेस्ट लाइन को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू रिक्वेस्ट टाइप,
URL and HTTP version. Clear? और request line क्या होता है? The request line is used for defining the request type, resource, URL and HTTP version. URL का क्या काम है? URL is a uniform resource locator. The client accessing a web page needs an address. HTTP uses the URL to facilitate the access of any document distributed over the world. ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आप देख सकते हैं. दिस इज हाउ यू टाइप इन द URL बेसिकली. सो URL जो हम लोग टाइप करते हैं, द मेथड, इसको जो पहला वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेथड. मेथड ये आपका होता है जैसे जो मेथड, जैसे जो भी प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं दैट विल बी यूज्ड एज ए मेथड. जैसे HTTP, हम लोग HTTP मेंशन होता है URL में जब कोई वेब पेज आप एक्सेस करते हैं, तो HTTP इज द मेथड दैट इज यूज्ड, क्लियर, फॉर द कम्युनिकेशन. उसके बाद आएगा कॉलन, देन डबल स्लैश होस्ट नेम, फिर कॉलन, देन पोर्ट ऑब्लिक पाथ, जहाँ पे उसको जाना है, जिस पाथ से पे उसको डेटा एक्सेस करना है. क्लियर? तो वो आपका वहां पे आ जाएगा. तो इतनी चीजें आपकी रहती हैं एक URL के अंदर. मेथड क्या है? मेथड इज द प्रोटोकॉल सच एज FTP और HTTP. होस्ट में क्या है? इट इज द कंप्यूटर वेयर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड. Port क्या है? Port is URL can optionally contain the server port number. The port is included, then it should be inserted between host and path. Clear? It should be separated by colon. इसको separate हम कैसे करते हैं? Colon के help से ports को. Path क्या है? It is the name of the file where the information is located. So version क्या है? The latest version of HTTP is 1.1, but the version 0.9 and 1 are also used. Clear? इसके बाद आता है रिस्पांस मैसेज. ये तो रिक्वेस्ट मैसेज की बात हो गई HTTP में. But talk about the response message. The response message also have the format. It consists of a status line, header, and sometimes a body. You can see status line, header, and sometimes a body is contained in the response message here of the HTTP. स्टेटस लाइन भी आप देख सकते हैं, दैट इज HTTP वर्जन, स्टेटस कोड एंड स्टेटस फ्रेज आर देयर. स्टेटस लाइन जो हम यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग द स्टेटस ऑफ द रिस्पांस मैसेज. क्लियर? जो रिस्पांस आता है स्टेटस में उसको डिफाइन करने के लिए होता है. इट कंसिस्ट ऑफ HTTP वर्जन, स्टेटस कोड एंड स्टेटस फ्रेजेस विथ स्पेस बिटवीन देम. क्लियर? ये देख सकते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द SMTP एंड HTTP प्रोटोकॉल. मैंने पूछा था आपसे, तो these are the five, there are 5 differences exactly. You can see differences और भी हैं, but we have 5 experiments right now. Okay, so what you can see is SMTP और HTTP का differences. हेलो क्लास, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Okay, so these are the differences you can see. SMTP में क्या होता है? This is a simple mail transfer protocol. ये जनरली कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल्स में यूज करते हैं. SMTP प्रोटोकॉल बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल में यूज किया जाता है, जहाँ पे हम कोई भी मेल कंपोज करते हैं क्लाइंट एंड से, उसको सर्वर की तरफ ट्रांसमिट करते हैं या दूसरे एंड पे ट्रांसमिट करते हैं. SMTP प्रोटोकॉल बेसिकली ए मेल ट्रांसमिटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि जो भी मेल्स क्लाइंट एंड से डिलीवर होते हैं उनको वो ट्रांसमिटिंग में हेल्प करता है. क्लियर? सो यही मतलब यही प्रोटोकॉल यूज होता है. तो इट इज ए टाइप ऑफ वन वे कम्युनिकेशन, एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन को फॉलो करता है. इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस ओनली इन यूनिडायरेक्शनल वे. क्लियर? व्हाइल HTTP इज ए मैसेज ट्रांसफर, ये भी प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट इट इज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और अदर वे राउंड आल्सो. मतलब दोनों साइड आप इसको कम्युनिकेशन करा सकते हैं, क्लाइंट टू सर्वर भी और सर्वर टू क्लाइंट भी. आप देखते हैं कि जो भी आप URL पे जब कुछ टाइप करते हैं वेब पेज सर्च करने के लिए, HTTP प्रोटोकॉल
आपको क्या करता है, आपने कुछ एक्सेस किया, मुझे रिक्वेस्ट भेजी और आपको कोई रिस्पांस मिलता भी है, क्लियर। सो इट इज जस्ट यू आर गेटिंग द रिस्पांस, क्लियर। सो एक तरह से ये हमारा टू वे प्रोसेस है। दोनों ही टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। एसएमटीपी आपका पोर्ट नंबर 25 को यूज करता है ट्रांसमिशन पर्पज के लिए, while एचटीटीपी जनरली पोर्ट 80 को यूज करता है ट्रांसमिशन के लिए। एसएमटीपी मैसेजेस आर रीड बाय द ह्यूमन बीइंग। एचटीटीपी मैसेजेस आर टू बी रीड एंड अंडरस्टूड द एचटीटीपी सर्वर्स एंड एचटीटीपी क्लाइंट्स बेसिकली। एसएमटीपी में मैसेज आर फर्स्ट स्टोर्ड एंड फॉरवर्डेड। एसएमटीपी में क्या है, जैसे कोई मैसेज आता है तो पहले उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको फॉरवर्ड किया। स्टोर कहाँ करते हैं, मेल बॉक्सेस में। वी हैव द मेल बॉक्सेस वेयर द मैसेजेस इज स्टोर्ड, क्लियर, या मैसेजेस आर स्टोर्ड। बट एचटीटीपी में क्या होता है, कोई स्टोरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी मैसेजेस हैं इमीडिएटली डिलीवर्ड होते हैं। कोई आएगा मैसेज तो तुरंत डिलीवर हो जाएगा। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, जो मैं बता रहा हूँ इसमें डिफरेंसेस अभी समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. Okay, so now we have okay, so you all are also requested kindly submit your tutorial latest by tomorrow, clear। कल तक सबमिट कर दीजिएगा Qt 4 and questions which we have covered in the class related to tutorial 5 as well as in your tutorial classes, clear। So इसके बाद आई विल शेयर यू पीडीएफ बाय टुडे। अभी कुछ पीडीएफ मैं आपको सेंड कर देता हूँ so that you can access or it will help you to make the notes also, clear। now इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसएमटीपी प्रोटोकॉल। एसएमटीपी हमने अभी आपको बताया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल में जनरली यूज करते हैं। बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम मेल्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं from one end to another end, clear। so it is a type of protocol। तो इसका भी मैं आपको कुछ शेयर दिखाता हूँ, एक मिनट फाइल जस्ट वेट करिए। okay, so if you see okay, so you can see here, is it visual to all of you? Yes, sir. यहाँ देखिए ये आपका एसएमटीपी को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक सेंडर है, एक रिसीवर है, क्लियर। तो जो सेंडर कम्युनिकेशन कर रहा है रिसीवर से, वो कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ मेल सर्वर, क्लियर। सो वी हैव अ मेल सर्वर। मेल सर्वर आर exactly connected with a